सर दादाजी कैसे? है अभी अच्छे हैं। अहमदाबाद छोड़ के आए उनको चाचा के पास, वहाँ पे भी है। सो फाइन, अच्छा चल रहा है उनका। Hello. बोलिए ना। Yes, good evening, sir. I am हम्म Meghna. I just हाँ want to बोलिए take मैम। 10 minutes regarding the श्योर document. श्योर, यस यस प्लीज गो अहेड, नो इशू। Thank you, sir. So, hello everyone. Good evening. My name is Meghna. I am HR in Airport Academy. I just joined the meeting to take your 5 to 10 minutes only. I am continuously messaging in the group regarding the documentation, but I found that very less number of documents and hard copy I received till now. So it's my humble request for everyone, for every student to submit the documents, because it's a very mandatory part. If you will not submit your documents, your PF service history, if you have your previous services, your previous service history, your previous CV, plus your Aadhaar card, PAN card, everything you have to submit. Plus hard copy is mandatory. It is hard copy of agreement. If you are not in Pune, you can post the agreement. When we will receive your hard copy, we will definitely give you a call or a message that we received. So please take the message seriously. Submit your agreement hard copy plus soft copy and fill the link of the form. So I hope everyone will get my concern and will now do the process. Otherwise, I will start removing you from the group, as I am informing continuously in the group. So please read the message, fill the form, and provide us the agreement hard copy plus soft copy also. If anyone have any doubt, they can ask me, or you can call us, or you can text us on WhatsApp also. Hello, ma'am. Yes. Myself, my name is Rajiv, and ma'am, I have some doubt. Ma'am, actually, I have already, ma'am, sent you for through courier, and I have also provided you the courier number, and also informed Chaitanya sir that you receive the bond and all that, but nobody has replied me and no answer from your side. I Okay. didn't get Can any you answer. please repeat your name? Ma'am, my name is Rajiv. I informed 2 or 3 times. I also text you, but you are not replying. You're just Rajiv, ignoring right? that. Yeah, ma'am. Okay, I okay. also called to tell Chaitanya sir that did you receive? I also provide you courier number and all that AWB number, but you Hmm. didn't inform her anything about me and didn't Okay, receive okay. any I call. will once in tomorrow morning I will check one more time, and I will tomorrow update you regarding the confirmation of Because your account. ma'am, I already called 2 times. You can also ask Chaitanya sir that I have called him or not, but he didn't didn't call back me about that Okay, matter I will and didn't. once confirm with Chaitanya, and I will inform you tomorrow morning. I'll talk with Chaitanya Okay, and I will inform you. Okay? okay, ma'am. Yeah. Okay. Yeah. If anyone have any other doubt regarding the documentation, you can ask me. I am in the meeting only to inform you that take the message seriously. Otherwise, we'll start removing you from the group. So start providing your agreement hard copies and fill the form as soon as possible. मैम आपको वो मिला है, वो कैसे कंफर्म होगा एग्रीमेंट हार्ड कॉपी? हम मैसेज करेंगे आपको, हमें जैसे ही रिसीव होती है हम आपको कॉल या मैसेज करेंगे डेट वी रिसीव योर एग्रीमेंट हार्ड कॉपी। क्योंकि वो स्पीड पोस्ट से भेजा हुआ है। हाँ हाँ, आपने कुरियर किया होगा। जब हमें पोस्ट आपका मिल जाता है एग्रीमेंट, तो हम आपको मैसेज या कॉल करते हैं कि हमें मिल चुका है एग्रीमेंट की हार्ड कॉपी। ओके मैम, थैंक यू। हाँ मैडम, वो पीएफ का डॉक्यूमेंट अगर नहीं निकलेगा तो फिर वो वहाँ पे क्या स्कैन करना, अपलोड करना डॉक्यूमेंट? आप एक पेज में लिख दीजिए नो पीएफ, और फिर वो फोटो क्लिक करके आप अपलोड कर दीजिए। ओके ओके मैम। नहीं पीएफ मैम, लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं निकल रहा है मेरे, डज नॉट सपोर्टेड एट ईपीएफओ साइड ऐसा बता रहा है। ओके, आपका नाम क्या है? दीपमाला पटेल। दीपमाला। ठीक है, मैं मंडे आपको कॉल करूंगी एंड आई विल इन्फॉर्म यू। नहीं तो फिर हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे। आप डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर वो नहीं हो रहा है, वी विल ट्राई फ्रॉम आवर साइड एंड आई विल अपडेट यू ऑन मंडे। ओके? सॉरी, मंडे नॉट, टुमारो मॉर्निंग। यस मैम, यस।
मैम जैसे मैम मेरे पास 1 ही साल का पीएफ था मैम, अब जो कि पता नहीं है अभी क्या है पीएफ अकाउंट नंबर, तो मैम उसके लिए क्या कर सकते हैं मैम? जैसे बाकी तो 6 ईयर्स वो का तो कोई पीएफ आपका भरा नहीं मैम, यूएन, हाँ तो उसको आपको मैम आपका जीरो भी कर यूएन सकते हैं? पता करना होगा। यूएन नंबर आप पता है मैडम हमको, लेकिन वो पीएफ जो डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं ना आप, ईपीएफओ साइट से निकालना है यूएन हाँ, तो नंबर। ईपीएफओ साइट से कैसे निकालते हैं? आप एक काम कीजिएगा, आप मुझे कल कॉल कीजिएगा। ग्रुप में जो मैसेज आता है डॉक्यूमेंटेशन का, उसी नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी कि कैसे आपकी सर्विस हिस्ट्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। यस ठीक है। मैम, ओके। और अभी जिसका भी वो हार्ड पीएफ सर्विस हिस्ट्री जो अपलोड नहीं हो रही थी, आप भी मुझे कल उसी नंबर पे कॉल कीजिएगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। ठीक है। यस मैम। ओके, सो आपको जो भी डाउट है आप उस नंबर पे कॉल कीजिए या चैतन्य सर को कॉल कीजिए, बट प्लीज एज सून एज पॉसिबल फॉर्म और एग्रीमेंट सबमिट कीजिए, इट्स वेरी मैंडेटरी। ओके ओके सर, थैंक यू, यू कैन कंटिन्यू विद द क्लास। थैंक यू मेघना। Okay, so continuing with our session again, it's a humble request, don't take in any other ways. देखो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी आप जहाँ लग जाते हो ऑफिस में, या कहीं भी आप पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट में या कंपनी में लगोगे, इंडस्ट्री में लगोगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सो इट्स बेटर कि हम उसे यहाँ पे बना के प्रॉपर उसे करके रखे डॉक्यूमेंट बेसिस में हिस्टोरिकल डिटेल्स सब। नहीं तो क्या हो जाएगा कि थोड़े से एक छोटे चीज के लिए फिर क्या होगा, आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, सब अच्छा करोगे, और लास्ट में उसके लिए कहीं अटक जाओगे तो इट वुड फील वेरी बैड। ओके, सो प्लीज ट्राई टू अगेन कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट विद अस। कोई कंपल्शन नहीं है ऐसे, कोई मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज के आज ही कल ही देना है, बट बेसिकली इतना ट्राई करो कि जितना हो सके जल्दी उसे कंप्लीट करके दे दो, ताकि क्या है ना कि आगे के जितने भी प्रोसेस होंगे तो हैजल फ्री होंगे। ओके, सो प्लीज डू दैट ऑल्सो। और जैसे उन्होंने बताया, कोई भी प्रॉब्लम है तो फोन करिए, बात कीजिए उनसे और क्लियर कीजिए। ओके, इज इट क्लियर गाइस? सर बोलिए ना। सर आईटी में ज्वाइन करने के लिए सर क्या पासपोर्ट कंपलसरी होता है? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, पासपोर्ट कंपल्सन का कोई नहीं है। जहां जहां कहीं कहीं भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एमएनसी कंपनी अगर आपको वहां पे बुलाएगी उनके जगह पे, पर क्योंकि उनका होता है ना कि मल्टीपल लैटिट्यूड्स में काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे केस में अगर आपको बोलेगी कि नहीं, आपको फॉर एग्जाम्पल चलो पकड़ लो, आपका यूएस में लग गया है, यूएस कंपनी बेचना है, आपको बुलाया गया है, तो पासपोर्ट लगेगा ना। ओके सर। कंपल्शन नहीं है, इट्स नॉट अ कंपल्सन, दे ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन। ओके, अगर है कोई ऐसा बंदा होता है तो दे विल ऑब्वियसली प्रेफर दैट, क्योंकि किसी का वेरिफिकेशन करके करना, 6 महीने तक वेट करना, इट्स बेटर कि जो है ऑलरेडी वही हो जाए यूटिलाइजेशन। ओके सर। या सोहम, आपका कुछ क्वेरी है? योर हैंड्स इज अप। सोहन। ओके, ठीक है ठीक है। सर जो एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी होता है वो नहीं देना, न्यू क्रिएट करके देना होता है क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, आप जो एग्जिस्टिंग वो भी दे सकते हो। बस इतना है कि देखो, कोई कोई कंपनी का होता है ना, किसी किसी का खुद का पर्सनल नहीं होता है, तो ऐसे केस में आप कंपनी का दोगे तो जो भी अपडेट आ रहा है वो कंपनी केस में जाएगा, फिर आपके ऑफिशियल ईमेल में जाएगा। फिर बेटर कि आप कोई एक नया ईमेल आईडी यूज करें। हो सकता है कि वही ईमेल आईडी से आपने शायद कभी पुराने इसमें वहां पे अपडेट किया होगा उस naukri.com में, फिर कहीं पे, तो क्या होगा कि एक ही यूजर आईडी के नाम से दो दो आपके रेज्यूमे पे दो दो चीज दिखेंगे, या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखेंगी, तो इट्स नॉट बेटर, इसलिए अलग किया जाता है, फ्रेश एकदम स्टार्ट। ओके ओके, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल एग्जिस्टिंग है ना लिंक्डइन और naukri.com पे, वो भी मेल से, इसलिए मैडम ने बोला था कि न्यू क्रिएट करके ईमेल आईडी देना। उसी के लिए हिस्ट्री प्रॉपर रहने के लिए, बाकी कुछ नहीं। Yes, sir. और सर मोबाइल नंबर वही रहेगा तो चलेगा ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, मोबाइल का कोई इशू नहीं, मोबाइल तो ओके, कोई इशू Sir, we will learn Excel from scratch. देखो, एक्सेल मैं आपको सिखाऊंगा, बट इन डेटा एनालिटिक्स मतलब पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं आपको स्क्रैच से, मतलब ऐसे नहीं सिखाऊंगा कि एक्सेल में मतलब हर एक चीज बेसिक एक्सेल का नहीं होगा, क्योंकि हर एक्सेल का पूरा सीखना मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे। डेटा एनालिटिक्स के पर्सपेक्टिव से यस, हम स्क्रैच से आपको बताएंगे अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इसमें बहुत सारा देखोगे तो यस, बेसिक से ही बहुत सारे मैक्सिमम चीजें हैं, यू विल गेट दैट। ओके, उसमें पावर क्वेरी भी रहता है सर?
पावर क्वेरी रहता है, बट पावर क्वेरी यहाँ पे और पावर बीआई में सेम रहेगा, सो इतना कुछ उसमें इफेक्ट नहीं है। पावर क्वेरी वहां पे देखोगे, यहाँ पे ऐसा नॉट अ डिफरेंस। तो यहाँ पे सीखने के बजाय वहां पे, क्योंकि पावर बीआई में पावर क्वेरी का ना बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है, ओके, तो वहां पे हम उसे करेंगे। पिवट टेबल, पिवट टेबल करेंगे ना, यस पिवट टेबल करेंगे। अब डेटा एनालिटिकल जो ऑप्शन है वो भी करेंगे हम, सिनेरियो मैनेजर है वो भी करेंगे, और सिनेरियो मैनेजर और क्या था एक, और एक है वो भी हम करेंगे बेसिकली एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से। VBA, वीबी नहीं, वीबी की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। वीबी के लिए आपको फिर एम लैंग्वेज चाहिए और एक नया लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। मैक्रो है, मैक्रो भी इतना जरूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेशन के लिए लगता है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये दो छोड़ के है, वो एडवांस में जाएगा। वी विल लर्न अप टू इंटरमीडिएट ओनली, ओके। और सर वी लुकअप वगैरह। हाँ यस यस, वी लुकअप है, लुकअप तो जरूरी है ना, लुकअप तो डेटा फेच और डेटा रेफरेंसेस के लिए वो तो लगेगा, विल हैव दैट। सर थोड़ा ये पावर क्वेरी का बता सकते हैं? पावर क्वेरी है क्या सर, मतलब कैसी यूज में होती है? बताता हूँ। देखो कोई भी डेटा आप जब डेटा लेते हो, फॉर एग्जांपल इट्स से कि डेटा यहाँ पे आप क्लिक करते हो, अब यहाँ से जब आप डेटा लेते हो ना किसी भी, फॉर एग्जांपल पकड़ लो, चलो यहाँ से CSV या कहीं से भी, मेरे पास डेटा टेस्ट का, डोंट नो ये क्या है, लेट अस सी। देखो ये डेटा है, ओके। अब ये डेटा देखो ये कहाँ पे, पावर क्वेरी में आ गया, ओके, दिस इज इन पावर क्वेरी। ये जो डेटा है जो आपको ये टैब दिख रहा है, इट्स पावर क्वेरी एडिटर में। यहाँ पे होता क्या है, सिंस वी आर आई एम फेचिंग द डेटा फ्रॉम, अगेन ये में एक्सेल है, एक्सेल में CSV का फाइल फेच कर रहा हूँ यूजिंग दैट गेट डेटा ऑप्शन। उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, CSV को सेलेक्ट करके टेस्ट फाइल करके उसे यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ, यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन दैट पावर क्वेरी क्या करता है, पावर क्वेरी इसे नेविगेटर कहते हो, ओके, इट्स बेसिकली नेविगेटर। ये जो टैब है इसे नेविगेटर टैब कहते हैं, दिस विंडो। नेविगेटर के थ्रू क्या करता है, फाइल का ओरिजिन कहां से है, दिस, एंड इट्स CSV, सिंस इट इज CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इट इज डिलिमिटेड बाय कॉमा, इसे कहते हैं डिलिमिटेड, मतलब क्या है, सेपरेट है इसे, कॉमा के बेसिस में डिलिमिटेड। एंड डेटा टाइप डिटेक्शन, अब इस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, इस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, इस कॉलम का डेटा, एक सेकेंड मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है किया है सर। किया, ओके थैंक यू। तो कौन से कॉलम का कौन सा डेटा टाइप है, अब कौन से कॉलम का कौन सा डेटा टाइप है, मतलब देखो बेसिकली होता क्या है, अगर ये कॉलम की हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है ना, सब नंबर है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि 1 से 100 रिकॉर्ड्स के आप डेटा देखोगे तो 1 से 100 के बीच में ना सब नंबर ही 1 2 3। हुआ क्या कि 101 में ना वहां पे से 1.2 ऐसा कुछ वैल्यू आ गया डेसिमल में। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, आप कभी भी देखोगे हेरारिकल में, ओके, हेरारिकल प्रोसेस में देखोगे तो इंटीजर के अबव, इंटीजर से सुपीरियर कहा है, या इंटीजर से हम फ्लोट को ज्यादा यूज करते हैं, फिर उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसे केस में क्या है, 1.2 तो है, ये फ्लोट डेसिमल में आता है, और बाकी के डिटेल्स है आपके इंटीजर में। तो ऑब्वियसली ये जो डेट, सिंस यू हैव सेड बेस्ड ऑन 100 रिकॉर्ड, आपने क्या डिसाइड किया कि ये इंटीजर ही रहेगा, तो 1.2 कन्वर्ट क्या हो जाएगा, 1 में हो जाएगा, 1.5 होगा तो 2 में हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, 1.6 और 1.5 1.2 ये वैल्यू क्या है, इट्स अ डेसिमल वैल्यू, उसके कुछ अलग मीनिंग होगा, बट हमारा डेटा क्या कर रहा है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू इंटीजर विच इज नॉट अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो ऐसे फॉल्स इंटरप्रिटेशंस, फॉल्स डेटा का आपका वहां पे डिटेल्स आपके क्रिएट होते हैं। तो पावर क्वेरी क्या करता है, पावर क्वेरी इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए चेक करता जाता है, इनको हेल्प करता है कि जब हम डेटा क्वेरी, क्वेरी मतलब क्या है, आप कुछ इनपुट दोगे वो हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, और अगर आपको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़े, जैसे डेटा यहाँ पे मैंने कहा था कि स्टार्टिंग केस में कुछ इशू आता है आपको, तो उस कॉलम को मैं ट्रांसफॉर्म कर सकूं, उसे मैं एडिट कर सकूं, उसका कॉलम चेंज कर सकूं, उसके डिटेल्स को मैं प्रॉपर कर सकूं, एडिट कर सकूं, तो उसे हम कहेंगे क्वेरी को ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होता है, देखो, एक होता है लोड, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्टली लोड कर दो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ अभी फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म क्वेरी पे, लोड तो डायरेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म क्वेरी पे जाता हूँ, देखो यहाँ पे ये देखो पावर क्वेरी एडिटर करके आपके यहाँ पे आ जाता है, क्या जाता है, पावर क्वेरी एडिटर करके विंडो आ जाता है। दिस विंडो इज टोटली सेपरेट फ्रॉम
द बैकग्राउंड दैट यू हैव, ओके। एक्सेल के इससे कोई में इसका कोई रिलेशन नहीं है, इट्स टोटल सेपरेट। यहाँ पे सोर्स के बेस पे, सोर्स क्या है, आपका फाइल कहाँ से है उसके बारे में डिटेल से। नेक्स्ट क्या है, प्रॉम्प्ट हेडर, जो यहाँ पे हेडर्स दिए हैं, यूजर आईडी, एज, जेंडर, प्लेटफॉर्म, ये जो है ना उन्होंने हेडर प्रोवाइड किया है और उनके हिसाब से उसके बेसिस में आपका डेटा टाइप डिफाइन कर रखा है। जैसे अगर किसी कॉलम को चेंज करके उसे नंबर में देना है तो नंबर, जैसे अब यहाँ पे कैसे पता चलता है, देखो प्लेटफॉर्म जो डिटेल है, प्लेटफॉर्म जो कॉलम है उसको, लेट मी जस्ट जूम द डेटा, उस डेटा को एबीसी करके उन्होंने डेटा टाइप डिफाइन कर रखा है। एबीसी क्या है, टेक्स्ट है, क्योंकि स्नैपचैट ऐसे कुछ स्ट्रिंग डिटेल्स है। वही यहाँ पे आओगे यहाँ पे नल है बट वहां पे नंबर्स है ना, तो देखो यूजर आईडी को उसने नंबर करके डेटा टाइप किया है, इस तरह से वो रीड करता है। अल्फा न्यूमेरिक होगा तो दोनों का डेटा से कुछ मिक्स रहेगा, ओके, और मैप रहेगा तो मैप, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट उसके डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन करके। डेट होगा तो डेट डिटेल्स होंगे, इस तरह से क्या करता है डेट, तो ये चेंज टाइप है यहाँ पे। ये पावर क्वेरी आपको हेल्प करता है वर्कआउट करने के लिए। कहाँ पे चले गया मेरा माइनस तो ये पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर का अगेन इससे इतना ही काम नहीं है, इट इज हैज लॉट्स ऑफ वर्क ओवर हियर। ये जितने भी देखो आपके टेबल्स यहाँ पे सबके सब आ चुके हैं, इसमें जितने भी हैं शीट में, उसी शीट में है या मेरे ख्याल से दूसरे से टेबल है, अच्छा मेरे पूरे शीट में जितने भी है, ये जितने भी है ना सब यहाँ पे डेटा जो है टोटल, वो जितने भी टेबल्स है मेरे पास डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया है इस मेथड से, सबके सब यहाँ पे अलाइन हो चुके हैं। तो वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग ओवर हियर, लॉट्स ऑफ थिंग। जैसे अगर आप यहाँ पे टेबल में आओगे तो ये यहाँ पे देखोगे, अगर ये कॉलम वन, अभी कॉलम वन क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मूवी का नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन, पर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इंटीजर नंबर है, मतलब नंबर भी, सीरियल नंबर भी मिक्स है, आपका मूवी का टाइटल भी मिक्स्ड है, कॉलम का जो टाइटल होना, लेबल होना चाहिए वो भी नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम्स है। तो इसे कैसे हैंडल करूंगा मैं, अगेन इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। ये एक्सेल में सीखने की बजाय, ओके, इसके हमें क्या करना है, पावर बीआई में ज्यादा यूज होता है, विल यूज देयर मोर ओवर दिस देन एक्सेल, वहां पे आपको यूज होगा। और ये सेम है लॉजिक, वहां पे करो यहाँ पे करो, दोनों ही हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपको दो दो बार क्या बताना ना, इसलिए एक्सेल में पावर बीआई में एक ही बार में दिखाया जाएगा। ओके ओके सर। ओके तो जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम हमने कुछ वर्कआउट किया था, लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया कि आपको जो हम वर्कआउट करने वाले जिसमें इफ एल्स कंडीशंस ऐसे कुछ फॉर्मेटिंग्स है, पहले आपको सिखाना होगा एंड देन वी विल वर्किंग ऑन, क्योंकि कुछ पॉइंट्स है जैसे कि स्केलिंग है ना, जैसे कि इम्पुटेशंस है, ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको पहले वो समझना है कि उसका फंक्शन कैसे वर्कआउट होता है एंड देन वी विल गो ओवर दैट। तो इसलिए एक्सेल में वापस आए हैं, एक्सेल को थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करा दूं मैं। यस स्वाति बोलिए। ये सर मुझे ये पूछना था, मतलब जैसे आपने प्रैक्टिस शीट दी थी तो उसके ऊपर मतलब आप करके दिखाओगे एक बार हमें? नहीं, उसमें जो है आपको जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, यू विल गेट दैट ऑल थिंग, ओके, आपको को प्रैक्टिस करते रहे, यू विल गेट दैट, बट दोस वेयर जो भी उसमें ऑप्शन है जो भी आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं वो यूज होगा, ओके, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिस, मेक इट ओनली प्रैक्टिस ओनली, जो है पैटर्न वही पे मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। ओके ओके, क्योंकि सर उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, मतलब वो थ्योरेटिकल वे से तो पता है लेकिन एग्जैक्ट जब डाटा सामने आया तो नहीं समझ में आया कि वही कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो आपके सामने जब ऐसे डेटा आएगा ना, जब ऐसे कुछ डेटा आएगा ना, तो क्या करना है ना, एक जो स्टेप्स है, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने कर रखी है ना यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ओके, वो कहीं ना कहीं वहां पे रिलेट होके आ जाएगा आपको। ओके ओके जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेल क्या होता है वो समझ लो। अच्छा, एक और किसी ने तो भी हाथ ऊपर किया था, आई एम नॉट हाँ फाइंडिंग सर, इट। मैंने बोलिए। किया आशीष सर। ये क्या बोलते हैं, आपने जो फाइल भेजा था वो CSV में था, एंड हम लोग जो भी इम्पिटेशन का काम करेंगे या कोई भी काम करेंगे दैट वुड बी इन एक्सेल राइट? सो हम लोग को वो फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा या फिर कैसे करते हो? देखो सीएसवी में सेव होता है, ऐसा कुछ नहीं कि सेव नहीं होता है, चेंजेस आपने किया है, इट डज सेव आल्सो, बट इट सेव्स एवरीथिंग इन वन पेज ओनली, एक ही पेज में होता है, ओके, उसको आप मल्टीपल शीट्स में नहीं कर सकते, दैट इज द प्रॉब्लम हो गया। सो एट इफ द डेटा इज अवेलेबल इन वन शीट, गो ऑन, नो प्रॉब्लम, बट अगर मल्टीपल शीट्स में, अगर आपको जैसे होता है ना कि मुझे जो डेटा दिया है उसमें चेंजेस नहीं करूंगा, मैं उसे कहीं और पेस्ट कर फिर एक और शीट ऐड करके उसमें करूंगा, तो एट दैट टाइम यू आर वर्किंग ऑन टू डिफरेंट शीट्स, 2 3 4 हो सकता है, तो वहां पे आपको उसको डेटा को कॉपी करके आपको उसको कन्वर्ट, सेव एज करना है, सेव एज करते समय आपको एक्सेल में कर देना है। ओके कैसे करना है, लेट मी शो यू दैट आल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, ये अगर सीएसवी फाइल होती है, फाइल
सेव एज में ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ब्राउज कहाँ पे करना है, ब्राउज जहाँ पे भी करना है यहाँ पे ऑप्शन होता है, देखो ओके। CSV होता है उसके पहले आपको यहाँ पे एक्सेल डॉट है ना, ये वर्कबुक में कर दो, इट विल सेव इन दैट फॉर्मेट। ओके, इज इट नो क्लियर? यस सर, बट कभी कभी क्या होता है सीएसवी से अगर जब हम लोग फॉर्मेट चेंज करते हैं तो कभी कभी उसका ये डेटा टाइप चेंज हो जाता है या फिर कभी कभी कुछ एरर्स आ जाता है उसमें। होता है ना, सो होता है ना, दैट इज डज, क्योंकि होता क्या, देखो CSV फाइल कॉमा टेक्स्ट है, सब चीजें क्या करता है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ओके सब डेट होगा तो भी टेक्स्ट में, सब चीजें कंसीडर करता है टेक्स्ट में। बट एक्सेल ऐसा नहीं करता, एक्सेल क्या करता है, नंबर है तो नंबर है, एवरीथिंग इज इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट में। तो फॉर एग्जांपल पकड़ लो, जैसे आपका क्वेश्चन है कि अगर एक डेटा सेट है जहाँ पे फॉर एग्जांपल पकड़ लो एक कॉलम है जो डेट का होना चाहिए था, पर उसे टेक्स्ट की वजह से आधा आधा, कभी डेट लेफ्ट साइड कभी राइट साइड आता है ना, प्रॉब्लम देखा है ना। हाँ तो ऐसे समय पे हम क्या करेंगे, ऐसे समय पे कुछ नहीं है, आपको उस फॉर्मेट में से एक्सट्रैक्ट करना होगा डेट टेबल। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आज का डेट क्या है, 17 है ना, 17/02/2025 कुछ इस तरह से लिखा होता है। अब ये डेट देखो क्या, ये जनरल है, देखो दो इट्स अ डेट बट ये जनरल दिखा रहा है, होना क्या चाहिए, डेट फॉर्मेट आना चाहिए। मगर फॉर्मेट कब होता है, 2025-02-17। अब देखो, अब ये डेटा डेट में है, ये डेटा जनरल है, तो जब तक आप एक्सेल का फॉर्मेट फॉलो नहीं करोगे कि वो डेट फॉर्मेट का, तब तक वो फॉर्मेट ही रीड नहीं करेगा। तो ऐसे केस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस सेल को, जो भी डेटा उसमें था, ये जो डेटा था, इस सेल को डेटा इसमें से एक्सट्रैक्ट करके उसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस सेल से, कहीं भी, मतलब यहाँ सेल कहीं भी सेल में। तो फॉर्मूलाज है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको वो भी बताता हूँ कहाँ पे मिलेगा, देखो इसी शीट में आगे आगे। ये देखो डेट एंड टाइम है, यहाँ पे भी हमने वर्कआउट किया है, ओके, डेट के इश्यूज क्या होते हैं, कैसे करते हैं, विल डू दैट वन बाय वन, वी विल गेट दैट एवरीथिंग, ओके ओके। यस सर Okay, so let me continue over here from this. Okay, किसी का और था कुछ क्वेश्चंस जो छूटा है मेरे से या जो मैंने निगलेक्ट कर दिया? मेरे को एक चीज पूछना था सर, जैसे हम लोग एक्सेल यूज करते हैं सर, वो कोई भी वर्जन चलेगा या कोई पर्टिकुलर अपना होना चाहिए?